بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست تشریف لا رہے ہیں وہ براڈ کو شیئر کریں اور ڈبل ٹیب لازمی کریے گا۔ ابھی ہم سوال و جواب کی نشست کر رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ڈبل ٹیپ کریں بھائی، شیئر کیجیے گا۔ ابھی ہم سوال جواب کی نشست کرتے ہیں انجینئر مرزا جونیئر جیلمی کے متعلق اور انجینئر مرزا سینئر غلام قادیانی کے متعلق۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں ان دو مرزوں کے متعلق۔ ڈبل ٹیپ کریں گے اور آپ ساتھ ساتھ شیئرنگ کریں گے۔ ڈبل ٹیپ اور شیئر کرنا ہے۔ ہاں بھائی کاشف، کیا حال ہے؟ سناؤ کوئی نمی تازی۔ الحمدللہ استاد محترم، میں ذرا شیئر کر رہا تھا تو قادیانیوں سے ذرا شیئر کر دوں میں 1 منٹ۔ بالکل 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 ٹھیک ہے، قادیانیوں کو بھی شیئر کرنی ہے ہمارے اور مرزیوں کو بھی ساتھ کریں۔ جی 10 آ جاؤ بھائی، قادیانیوں نیڑے لگو بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعمان میاں ڈبل ٹیپ کرو اور شیئر کرو۔ اچھا بھی کدھر چلے گئے قادیانی؟ لو جی، جامعہ ختم نبوت کی ابتدا کر دی ہے تو دوستوں نے دعا کرنی ہے خصوصی، الحمدللہ۔ اور گجرانوالا میں مدرسہ بن گئے ہے، طلباء اور طالبات دونوں کے داخلے جاری ہیں۔ جو گجرانوالا کے طلباء اور طالبات ہیں اگر تو مجھے سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جن دوستوں کے رابطے کے اندر گجرانوالا کے طلباء اور طالبات ہیں تو وہ لازمی جناب داخلہ لیں۔ یہ فزیکلی کلاس ہوگی، آن لائن کلاس نہیں ہے۔ تو بہت سے دوست رابطے کر رہے ہیں کہ یہ آن لائن ہے کہ فزیکلی ہے، تو بہرحال وہ بتایا بھی ہے میں نے ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ، لیکن دوست پتہ نہیں توجہ نہیں دیتے۔ ذیشان یہ ملحد ہے کوئی بندہ، کہہ رہا ہے جی مجھے مسلمان ہونا ہے۔ جی جی ہو جائیں مسلمان، الہادیت پہ لعنت ڈالیں اور مسلمان ہو جائیں، یہ کون سا مشکل ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی والسلام۔ جی مفتی صاحب، آپ ایک علمی ہے تو ذرا تو گالی گفتاری سے بات نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور گالی یہاں تو ہم نہیں دیتے۔ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو الہادیت پہ لعنت ڈال دیں، مسلمان ہو جائیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب جو مجھے ملحد کہہ رہا ہے وہی بندہ سب سے بڑا ملحد ہے۔ نہیں تم ملحد نہیں ہو، تم ملحد ہو۔ الحمدللہ واٹس ایپ کے اوپر بھی تمہارے ساتھ گفتگو کئی دفعہ ہوئی ہے۔ نہیں تم تو مفتی پکے صاحب ٹھیک غلط فہمی ہے، ملحد ہو۔ الحمدللہ مسلمان ہوں۔ او یہ بہت ہو، یہ ڈرامے بازی مسلمان کرتے ہو نا ہوں۔ تم لوگ ملحدین، وہ ملحدین یہی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں ملحد ہوں؟
आप बताइए कैसे अपने कर सकते खतने चेक कराओ। हैं? कैसी बात कर रहे हैं, कोई इल्मी चल बात कर कैमरा रहे हैं ऑन मुफ्ती करके ना साहब? खतने चेक करा। चाह गए उस्ताद जी, चाह गए हो। चल मुफ्ती साहब कैमरा ऑन इल्मी कर, बात कर रहे खतने हैं, कोई चेक करा। इल्मी बात कर रहे हैं। और चल इल्मी नहीं करना और की, दलील के साथ बात करे ना। कैमरा ऑन करके तंबी ला ते तेरे खतने चेक कर लेने। मुफ्ती साहब रमजान मुबारक है। रमजान हो तो रमजान में तंबी उतारनी क्या नजायज हो जाती है? चल तंबी ला जरा, तेरे खतने चेक करने ने। मुफ्ती साहब चल। रमजान मुबारक में इस तरह की बातें करना ਉਹ कोई ਚੱਲ मुनासिब ਨਾ नहीं ਤੈਨੂੰ है। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਤਨੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोसेस होता है ਵੇਲੇ पूरा ਉਹ process ਲੋਕੀ है। ਗਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। मुझे तो कोई इल्मी गल करनी है, आपने नहीं करनी। ਉਹ ਇਲਮੀ ਮਰ ਜੇ, ਇਲਮੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ। आप मुझे बताइए, मुझे मुसलमान होने के लिए कौन से फिरके में जाना चाहिए? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੰਬੀ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਾ। नहीं मैंने नहीं लानी, ਚੱਲ मैंने ਲਾ नहीं ਲੈ लानी। ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਂਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈ? ਮੁਲਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਬੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ना जी, चल हाँ जी, चल मैंने नहीं उतार लानी। दे, कोई मसला नहीं। आज रिकॉर्ड कायम कर दे ऑनलाइन तंबी उतारने का। आ जामिया मिकिया ते लाना ही है मुरब्बियां दे सामने। ओ ही ना, सारे के सामने उतारते हो तुम, इधर उतारोगे मौलवियों के सामने तो क्या काशिफ मसला है? साहब ने, मुफ्ती साहब काशिफ साहब मुझे मौलिद कहते हैं, तो वो मैं कह रहा हूँ, काशिफ साहब नहीं कह रहे, काशिफ तो शागिर्द है मेरा। जब उस्ताद कह रहा है तो काशिफ तो शागिर्द है। मैं कह रहा हूँ तुझे मुलहिद है, तू है ही मुलहिद। मुफ्ती साहब को इल्मी की गल कर ले, ये हो गया है। और मर जा, इलमी गल ही ते नकाशी तू ही कर रहा है नाल इलमी गल भाई। नहीं नहीं उस्ताद जी, ये इल्मी गल यही है कि ये सब के सामने कैमरा ऑन करके कच्ची लावे, बस खत्म। ये कैमरा नहीं इल्मी ऑन गल होता है। पिया। देखो ये मेरी कैमरा बात खराब सुनो, मेरी बात सुनो। नुमान सिराज है, नुमान सिराज, बात सुनो। बात ये है कि सारे सामने तो लाई है ना, जामिया दे विच भी ते लाई सी ना तू। मैं को नहीं लानी। देखो मुरब्बियान के सामने या तो तुम इस चीज का हलफ दो, मिर्जे कादियानी का कसम उठा के कहोगे तुमने नहीं उतारी। मिर्जा साहब का है, काशिफ साहब मिर्जा साहब का है, देखें बद कलामी ना करें। यार देखिए, मिर्जा कादियानी गलत चीज है। मिर्जा साहब बोले काशिफ भाई मिर्जा पहले। साहब। ओए मर जा, तू मिर्जा का क्या लगता है? मिर्जा ते मिर्जा नु तू किथे मनना है? तू तो मुलहिद आदमी। ये आप कैसे कह सकते हो मुफ्ती? और यार तंबी उतारेगा अभी पता चल जाएगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। चल कैमरा ऑन नहीं होता, कैमरा खराब है। कैमरा तेरे पुत्र सारे आन होंदे ने, तू ड्रामेबाजियां तू करना है पिया। चल चल ला दे अज तंबी। नहीं है मुफ्ती साहब। और चल जिवें YouTube ते तू लाई सी ना तंबी, उंजी इत्थे भी टिकटॉक ते भी ला के बहा दे। चल मुफ्ती साहब कैमरा ऑन नहीं होता पिया। ओए हो जांदा है, आन हुंदा है पिया पुत्र, हो जांदा है, कोई नहीं, खैर है। चल ओ यार काशिफ दी तंबी लवाई जरा, मैं बह के वेखना कि तू की करना है। यार यूट्यूब पे जब तुम आए थे तो तुम कॉपी पेंसिल भी छोड़ के भाग गए थे। नहीं भाई, ऐसे मुफ्ती नहीं बनते हो करो आप यार, लोग, यार ऐसे आपको शर्म नहीं आती? इस तरह जल्दी की करो यार, बातें जल्दी करते कर लो, जल्दी कर लो बाबू, जल्दी कर लो। नागन चौरंगी में खड़ा हूं मैं, जल्दी कर लो। हो। शर्म करें, शर्म करें। मुफ्ती साहब इल्मी गल करनी है, कोई नहीं करनी? मैंने दस हाँ हाँ, अलिफ लाम मीम गड़िए वाली इल्मी करनी है। बता ना, जामिया में मुरब्बियों के सामने जब तूने उतार दी थी तो हमारे सामने उतारते हुए मसला क्या है? मसला क्या है? ओए ले वो तंबी लगता है उन्हें पहले ही लाई सी, या ते हुन पान गया ही। ਉਹਦੇ ਤੰਬੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਆਂਦੇ ਸੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਤੀ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਸਰੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਲੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਖਬੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ। हाँ भाई आओ भाई, कादियानियों आओ, काल करो यार, कोई तबलीग करोगे सानू भी, मर जाओ। मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा।
और उस्ताद जी मदरसे दी सुनाओ, सही चल रहा है? मदरसा जी अल्हम्दुलिल्लाह जे ते दाखले जारी ने और दोस्तां के गुजारिश है भाई कि ए इश्तिहार मैं शेयर करना वा ते ਇਹਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ सही लग गया? जी जी उस्ताद जी, ओके। ओके हो गया। स्क्रीन शॉट ले लो भाई जल्दी जल्दी। और ये गुजरांवाला के दाखले जारी हैं तुलबा और तालबात दोनों के लिए। तालबात की जो क्लास है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक और तुलबा की क्लास बाद अज़ नमाज़े इशा। और ये सिर्फ गुजरांवाला के लिए है। तो जिन दोस्तों के दोस्त गुजरांवाला रहते हैं उन तक ये पैगाम लाजमी पहुंचाइए। और दाखले शुरू हो गए हैं। ईद के फौरी बाद इंशाल्लाह क्लासें हमने शुरू कर देनी है अल्लाह का नाम लेके। ये दरस निज़ामी भी होगी और तकाबले दयानो मज़ाहब भी होगा। ये रद्द इल्हादियत भी होगा, रद्द ईसाइयत भी होगा, रद्द कादियानियत भी होगा और ये दीगर जो फितना हाय ज़माना है इनका रद्द भी होगा। तो इस जामिया में पढ़ने वाले इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक अजीम स्कॉलर और मुनाजिर बनेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में, लड़कियां भी और लड़के भी। तालबात के लिए एक लेडी टीचर है, तुलबा के लिए आजिज़ खुद पढ़ाएगा इंशाअल्लाह। पर्दे का बहुत मजबूत इंतजाम किया गया है, ठीक है जी। और ये फ्री ऑफ द कास्ट ये तलीमात हैं, कोई इसके फीसिस नहीं है। तो ये पैगाम दरस निज़ामी का सुन लें, आगे फिर डिबेट करते हैं। कोई कादियानी मरज़ई आता है तो फिर डिबेट करते हैं इंशाल्लाह। उस्ताद जी हम भी अपने यूट्यूब के चैनल मैंने बनाया, उस पर भी किया है। और हाँ बिल्कुल, गुजरांवाला के जो कम से कम दोस्त है ना उन तक ये पैगाम पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा। जी जी इंशाल्लाह। और ऑनलाइन अगर किसी ने पढ़ना हो तो वो फिर हम ऑनलाइन भी क्लासें देंगे 1 to 1 की, और उसकी हम फीस लेंगे। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो वो सेपरेट होगा, अलग पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है उस्ताद, मतलब इसकी कोई लोकेशन वगैरह शेयर हो सकती है अगर पर्सनल में? लोकेशन लिखा हुआ है पता सारा यार, लोकेशन की तो जरूरत नहीं है कोई, वो सारे गुजरांवाले वाले को पता है, पता लिखा हुआ है सारा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जी जी बेहतर हो गया, क्योंकि कुछ हैं दोस्त जानने वाले गुजरांवाला के, तो फिर उनको बंदा शेयर कर। यार ओए नास जाए मुलहिद खबीस के बच्चे, तू इतने मैनू नजर ना आई। ये पहले तो तुझे म्यूट कर रहा हूँ, फिर तुझे ब्लॉक कर रहा हूँ, निकल जा, तितर हो जा। कोई जगह नहीं मेरी बराड़ से, कोई जगह नहीं है खबीसा दी। नस जाओ, निकल यहाँ से। उस्ताद जी मॉडरेटर बना दे, क्योंकि अभी वो काशिफ भाई इफ्तारी कर रहे हैं। हाँ अच्छा 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 अच्छा, मॉडरेटर नहीं बने तुसी, चलो बना देता। ठीक हो गया। आओ यार कोई निकलो बाहरों, मर जाओ कि तबलीग करो, सानू भी कोई तबलीग करो। इधर उधर वड़ के तबलीग करते रहंदे हो। हाँ उस्ताद जी आजकल नजर नहीं आ रहे ना मिर्ज़ई तो वैसे नहीं नजर आ रहे। ਮਜ਼ਈ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ ਮੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਰ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜੂਲੀਅਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। कभी आप नहीं देखेंगे कादियानी को या मरज़ई को, मिर्जा सीनियर वाले को या मिर्जा जूनियर वाले को, कभी नहीं देखेंगे कोई गुफ्तगू करें इल्मी, कभी भी नहीं। बक 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 बक
सिवाय गुस्ताखियों के इनके पास कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आसिफ भाई बैठे हुए थे एक बरात पे कुछ दिन पहले थी, उस पे घेरा हुआ था आसिफ भाई को, 6-7 मिर्जई थे और तो मैं भी चला गया कॉल पे, बस जाते ही उन्होंने गालियां शुरू कर दी फिर। हाँ यही है और क्या है, यही तो तबलीग है। और मिर्जा कादियानी गालियां निकालता था, वो जो आता था उसको बड़ी बड़ी गालियां निकालता था। गालियां ही तो तबलीग है। आपको नहीं पता इतनी लंबी चौड़ी तो उसने गालियां निकाली हैं, गाली के अलावा वो कोई बात नहीं करता था। बिल्कुल, हमने भी फिर एक ही सवाल पूछना होता जाके कि अपनी वालदा के 4 शौहर जो है वो बता दो। हाँ और कोई सवाल बनता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, और कौन सा सवाल करना है इनसे। आओ यार कोई मर जाओ कॉल कर लो, इन्ना कादियानियां नूं शेयर करो, मर जाओ कि तबलीग करो, निकलो बाहर कादियानियां। 3-4 कादियानियां ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੇਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ठीक है इंशाल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम है ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ इंशाल्लाह। अल्लाह दे हुक्म नाल, अल्लाह दे फजल नाल, अल्लाह दे फजल नाल इंशाल्लाह। तुसीं वेखो इंशाल्लाह ताला कोई 4 साल बाद ही मिलांगे इंशाल्लाह। हजे मैं ज़हन बनाया हजे मैनूं 4 बच्चे 4 बच्चियां ਲੱਭ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਖਾਰਾਂਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ कोई गल नहीं, थोड़ा ही ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਹੀਨ 2 ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, BA ਪਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਤਬਕਾ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। इंशाल्लाह उस्ताद जी। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਟਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੀ ਕੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਬਲੇ ਅਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਕਾਬਲੇ ਅਧਿਆਨ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर सी। ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, बाकी फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब आंदा निकम्मा समझ के जिनको बुझा दिया था तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा इनकलाब बपा कर सकता है, एक अगर असी तैयार कर देता। कोई 5 7 10 100 50 की गल नहीं मैं करे, एक बच्चा बस बड़ा है। बिल्कुल, मतलब कि एक होवे तो सुथरा होवे, एक सुथरा है। अल्लाह दा फाजले बरेलवी एक सजे ना। हां हां बिल्कुल, एक ही बंदा सी ना। शाह मनवानी एक ही सी ना, पीर मेरे लिए शाह एक ही सी ना। माशाअल्लाह, वो एक भी जड़ा वो इनकलाब बपा कर देता, एक काफी है। इंशाल्लाह बहुत कुछ सोचा है मैं, और साफ ही तरतीब दे दिता है इंशाल्लाह ताला, खिच दिने हैं। मैं भी है ते नाले इस तो बाद जेडी टेक्नोलॉजी है उनका भी होना चाहिए विच। हाँ जी, वो तो लाजमी है ना जी, कंप्यूटर की तालीम लाजमी है नाल रखी, इंग्लिश और अरबी लैंग्वेज लाजमी है, ये लाजमी सब्जेक्ट ने।
ਹੁਣ ਬਸ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਡੀ ਰਹਿ ਪਈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਮਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰਫ, ਉਹ ਹੈ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਵੇ ਇਹ ਇੰਜ ਵੇ ਇਹ ਇੰਜ ਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਲਓ ਫੜੋ ਜੀ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਮਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਤਾਮੁਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਅਜੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀੜੇ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤਿੱਤਰ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੇ ਰੋਲੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਵਾ 2 ਕਨਾਲ, ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਝ ਡਰਾਮੇ ਪਾ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜਿਆ ਜੇ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਰਸੀਦ ਜੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਤੱਯਨ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਮ, ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲਟਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਕਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਇਬਤਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਸਤਾद जी इंशाल्लाह ताला फिक्र नहीं करनी, अल्लाह खैर करेगा, कोई मुताबिक असबाब है, बेशक है। ऐसी ऐसी जगह तो सबब बना देगा कि इंसान दे वहम गुमान च भी नहीं होगा। बेशक है जी, बेशक है जी। भाई ये दोस्त जेडे सुनते हो पे, जो दोस्त सुन रहे हैं दरस निज़ामी तकाबले दियानो मज़ाहब की क्लास शुरू हो गई है, दाखिले शुरू हो गए हैं गुजरांवाला के अंदर। तो ये तस्वीर ले लें, स्क्रीन शॉट, जो दोस्त गुजरांवाला के हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ और ताकि वो दाखिला लें और आके पढ़ सकें। उस्ताद जी पप्पू आया कि की कहते जी? पप्पू पप्पू भी मुल्ले दा आदमी है, ले लो चुक लो सुकालते उन्हें की बक बकी करनी है और की। ये देखो वो खाना तो नसेरी है, चलो चुक ले। बक बक तो इलावा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वसलाम जी। जी मुफ्ती साहब क्या हाल, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह ਦਾ। साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਹਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਆਇਆ ਨੇ ਯਾਰ ਲੈ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी बोलो की हो गया जो बोलती बंद हो गई है। 5-10 मिनट मैं 10 मिनट तक आना थोड़े को जज़ाकल्लाह। जाओ फिर थल्ले जाओ, बबो जाके थल्ले ला दे सोए, एवें लेदी ना कर दे। साजी इस बंदे की नहीं समझ आई है की चीज है। ड्रामेबाजियां ने बस कोई शय नहीं। मायूस तबका है और बिल्कुल अकल तुआरी फारग तबका, ना कम ना काज, वेले मिशटंडे आ जाते नहीं मुंह चुके। चलो जी वेले या टिक टाक दे मैंने जाके ते चलो कोई गप्पा शप्पा मारने और की कुछ भी नहीं। मतलब कि कोई बरात छिड़ी होवे विच जाके अपनियां विच अपनी खच मारेगा विच जाके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਮਰਜ਼ਈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। काश्यप किधर टुर गए हैं? जी उस्ताद मुहतरम भी रोजा खोला। रोजा खुल गया? हाँ जी खुल गया। ते फिर साडे जामिया से दुआ कीती है नहीं कीती ते कर। अल्लाह पाक इस जामिया नू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और एदी तामीर दे विच जेड़ा रुकावट आ रही है उन्होंने अल्लाह पाक खत्म फरमाए और जल्द अज जल्द एदी ओरिजिनल जड़ी मेन बिल्डिंग है ओदी तामीर फरमाए, ओदी जमीन खरीदन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान।
पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त के पीछे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफकत होता है। खत्म नबूवत का काम कीजिए, अपने अपने तई जितनी हिम्मत तौफीक है सोशल मीडिया पर या मतलब आपके गली मोहल्लों में जैसे तैसे भी हो, बहुत हजूर अलैहिस्सलाम का फैजान मिलेगा, अल्लाह रसूल खुश हो जाएंगे। कोनी फिर भाई ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ। पप्पू थल्ले बैठा ते है ही, अब मर जा, आ जा फिर मैं चल रहा हूँ, ब्राड खत्म करन लगा हूं। जेड़ी कोई बक बक करनी है आ जा, जल्दी जल्दी आ जा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। एक 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਜਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਸ ਭੱਜ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ, ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ, 101 ਕੰਮ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵਾਹ ਸਭ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਸਭ ਖਿੱਚਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਲੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਅੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बिल्कुल, लैस लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वो चीज मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। अच्छाई की कोशिश करोगे अच्छाई मिल जाएगी, बुराई की करोगे बुराई मिल जाएगी। ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादों को नहीं बदलता। अल्लाह ने जब वादा कर दिया है कि इंसान कोशिश करेगा उसको मिलेगा, बदलेगा नहीं वो अपना वादा। बेशक बुराई की कोशिश करके देख लो, कितने लोग हैं बुराई की कोशिश करते हैं, उनको बुराई मिल नहीं जाती। वो देखे ना, वो लड़की है जो आजकल टिकटॉक पर बड़ी वायरल हो रही है, उसने 2 बच्चे अपने मासूम, उनको छोड़ के पहले से तलाक लेके एक नया शोहर ढूंढ के, वो टिकटॉकर था, उसको वो बड़ी गिफ्टिंग करता था, पैसा दे के उसने कोशिश की, उसके साथ शादी नहीं कर ली। बताएं, बिल्कुल जी, वो तो बड़ा कोशिश जो जिसकी कोशिश करे उसको मिलेगा। अच्छाई की कोशिश करोगे अच्छाई मिलेगी, बुराई की करोगे बुराई मिल जाएगी, वो कोई मुश्किल नहीं। जो जैसी कोशिश करेगा वैसा मिल जाएगा। सजा और जजा आखिर के ऊपर है, वो अल्लाह ने आखिरत में रखा हुआ है, लेकिन उसने वादा कर लिया हुआ है। अच्छाई की कोशिश करोगे अच्छाई मिल जाएगी, बुराई की करोगे बुराई मिल जाएगी। हर इंसान को वो मिलना है जिसकी वो कोशिश करता है। बैरिस्टर जकी साहब आए हैं, जज़ाकल्लाह, कॉल पे आ जाए बैरिस्टर साहब, कुछ सुनाए हमें। ताजी मैं तो इंतजार में कोई कादियानी मरज़ई आ जाए, कोई गुफ्तगू हो जाए। बैरिस्टर साहब के पास भी काफी इल्म है और हाँ जी, बड़े आजकल बाकमाल इंसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आप खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र, बस अभी अफ्तार के औकात से यानी फारिग होकर ज्वाइन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैरिस्टर साहब, जामिया का ये
पोस्टर देख रहे हैं, हमने जामिया शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मुफ्ती साहब। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी हो मुबारक, हमारे तमाम मुजाहिदीन खत्म नबूवत को मुबारक हो। जी बिल्कुल, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। हाँ खुशी की है, से वो तो मुफ्ती- जो मुजाहिदीन खत्म नबूवत है वो उनको तो खुशी होगी, लाजमी होगी इंशाल्लाह। जी आपकी मुफ्ती साहब काविशों से मुफ्ती जैन साहब आए इधर रमज़ान से, और उनकी मौजूदगी में इधर 4 चांद लग गए। आम तौर पे जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि गुफ्तगू तो हुआ करती थी, लेकिन एक इल्मी अंदाज के अंदर जो उनकी आने से जो बरकत हुई, वो इल्मी अंदाज में जो गुफ्तगू करते और एक एक बात का वो हवाला जात के साथ कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर एक बड़ा मुफस्सल जवाब दिया करते थे, और खुशी होती थी यानी मुफ्ती जैन साहब को जब भी देखते उनकी ब्रॉड पे भी हम जाया करते। तो अब इसी चीज़ की अब हम इंतज़ार में हैं कि अब उनकी तरह के और मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत जिनके पास एक तो कादियानियत का भी इल्म हो, दीन का भी इल्म हो, और फिर वो आके इसके ऊपर फिर बहस भी करें, मुबासा भी करें, डिबेट भी करें, लेक्चर भी दें, सारी चीज़ें वो एक साथ यानी एक गुलदस्ता बना के वो जब पेश हो हमारे सामने, तो हमारे इल्म में भी इजाफा हो, और जो बाकी आम अवाम है जो स्क्रोलिंग करते हुए अक्सर औकात उनके सामने कभी कादियानी की ब्रॉड आती है, कभी किसी मुल्लद की ब्रॉड आती है, तो जब इस तरीके की हमारे किसी भाई किसी आलिम की ब्रॉड आए तो वो फिर राहे रास्त पे आए, और ये जो वसवसे शैतान डालता है और ये जो शैतान के आलाकार इधर ब्रॉडों पे बैठ के डाल सकते हैं, उनका भी सदेबाब इस तरीके से किया जा सकेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। जी आने वाला वक्त इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी खेप सोशल मीडिया को हम देंगे, और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब जैसे और भी बहुत से आपको मुफ्तियान इकराम, स्कॉलर्स, डिबेटर्स देखने सुनने को आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। इब्तिदा हो चुकी है, जामिया का इफ्तिताह हो चुका है, और ईद के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल क्लासें शुरू हो जानी हैं इंशाअल्लाह। साहब मैं हाँ भाई पप्पू। मुफ्ती साहब मैं पिछले दिनों में बड़ी मदद चाहता हूँ, मैं कुछ गुस्ताखी कर किया था, बस शैतान सर पे सवार होता है आपको पता है, और आपके एक स्टूडेंट से गलबन मुंह मारी हो रही थी, वो भी चल यार तू हुन भी कर ले गुस्ताखी, मुंह मारी कर ले, तू गल जेडी करना है तेन मैं पहले क्या वे जेडे मिशन ते है तू ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮੰਗ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਐਸੀ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ 1 क्यों मनाते हो ये मिशन थी, नंबर 2 इन्नी जो तू इतनी देर की तुम कर रहे थे यूं वो माफी मंगी मैं उधर रमजान ते ओ अल्लाह को माफी ओदे को माफी ऐसी मिशन क्यों तू मदरसा क्यों बनाना है, फिर तू डायरेक्ट आके कह भाई कि भाई क्यों बनाना है, फिर मैं बता देता आलम ने माइक म्यूट कर दे दसना भरा ने और माइक ते म्यूट कर मैं दसना पिया तेनू मिशन तेरा पूरा हो गया है, हुन माइक म्यूट कर मैं दसना जवाब देना तेनू हद हो गई। इस वास्ते बनाने पे ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ, ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਮੁਖਾਲਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 135 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਏ? ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਯਾਰ ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਮੰਜੀ ਠੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਛੁਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਦਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਦਰਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਖੋਂ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫਨਕਾਰ ਆ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਠਕਵਾਓ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਦੀ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਜਾਏ ਤੇ ਐਸੀ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਦਾ, ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਠੁੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਐ ਵੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਠੋਕਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਰਮਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਨਾ ਬਣ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, गाली कर दे हो कादियानी अच्छा देखो, अच्छा चल माइक म्यूट कर। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा इन कादियानियों के पास, इन मुल्हिदों के पास, इन मर्दियों के पास कोई बंदे के पुत्रों वाला सवाल ही नहीं होता। ये देख लिया आपने, नमूना आपके सामने। मैंने जो बात कही थी वो पूरा सवाल जवाब मिल गया। कोई इल्मी बात, कोई इल्मी सवाल, कोई ऐसी सिवाय आटा गुंदी हिलदी क्यों है पई, तू है क्यों करना है, तू इंज क्यों, तू गाना करना है, तू सिवाय मेनिया दे तू इन्हां कादियानियां को और मुल्हिदा को कोई बंदे दे पुत्रां दी गल ही कोई। देख लिया आपने, ये नमूना था। मैं जानबूझ के इसके सारे सवाल सुन रहा था और जवाब भी दे रहा था आपको दिखाने के लिए कि इस किस्म के होते हैं ये मुल्हिदीन। इनके देख ले, इनके ड्रामे और भी आएंगे कलर, यही होगा, यही, इसके अलावा कोई बात नहीं जी। बैरिस्टर जकी साहब बैठे हैं, आप क्या फरमाते हैं? साहब ये आसान है कि कोई और हमें और डिबेट की जरूरत है। किताब सामने रख के तो कोई भी बयां कर सकता है, लेकिन दीन का फहम होना और उसके मालूमात होना और उसके हवाले से कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब देना वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और सरसरी किसी चीज़ का इल्म होना तो वो कोई अलहदा बात है। दूसरी बात यह है कि मैं हाल ही में एक वीडियो गुजर रहा था उर्दू के अंदर, ये वो बहुत महान कादियानी मुरब्बी है रज़ीउल्लाह, और जो आजकल इनका फ्रंट मैन बना हुआ है, तो उसने भी यानी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई। उसके अंदर मुफ्ती साहब आपके हवाले से वो थोड़ी सी नाजेबा उसने गुफ्तगू की, तो वो जब मैंने सुनी तो मुझे खुशी हुई सुन के कि यहाँ तक कि कनाडा के आखिरी कोने तक आपकी आवाज़ जा रही है। और अंग्रेज़ी ज़बान में जो इनके मुबल्लिग़ हैं और ये जो इनका काम करते हैं उनको भी आफत आम मची हुई है। तो अभी तो मुफ्ती साहब आप अकेले हैं,
اور اس نظام میں اس لحاظ سے کام اس طریقے سے، یعنی ابھی تو اکیلے تنہا ایک شخص کام کر رہا ہے، جب ایک اور ایک 11 ہوں گے تو پھر اگلی چیخ جو ہے وہ پھر خلیفہ مسرور کی ہی ہمیں نظر آئے گی. اس لیے یہ تو وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے تقابل و ادیان مذاہب کا، خاص طور پہ مجھے مفتی صاحب اوئے بندے دا پتر بننا پپو، اوئے بندے دا پتر بننا. بات تو پپو مکمل کرنے دو. تو افطاری ابھی پپو نے بھی میری طرح کی ہوگی، تو وہ پھر اب ہضم کرنے کی کوشش، پپو میرا بھائی ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹک ٹاک پہ، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں. کوئی نہیں پپو، تو اس لیے پھر یہ بڑی اہم اس وقت کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے بغیر تو میرے خیال سے کوئی چارہ ہی نہیں. اور مفتی صاحب جو آئے ہیں اور اس فیلڈ کے اندر انہوں نے قدم رکھا، تو جس وقت ہم لوگ شاید اپنے نیپیوں میں تھے جو ادھر کہتے ہیں کہ جی ہم کام کر رہے ہیں، اس وقت سے مفتی صاحب یہ کام کر رہے ہیں. تو کوئی کہے کہ جی کیا ٹریننگ ہے آپ کے پاس اور کیا کیا چیز ہے، یہ بالکل بات صریح طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم امید کریں گے کہ جلد از جلد مفتی صاحب کے توسط سے اور ڈبیٹر آئیں، اور مناظر آئیں، اور مبلغ آئیں، اور لیکچرر آئیں، اور ٹیچر آئیں، جن سے صرف ہم لوگوں کو ہی نہیں باقی جو امت مسلمہ ہے اس کا بھی فائدہ ہو سکے. میں آپ کو مفتی صاحب حقیقی بات بتا رہا ہوں، ادھر جو میجورٹی، اور یہ سب کو معلوم ہے، جو ختم نبوت کی براڈز چلتی ہیں اس کے اندر جو میجورٹی آج بھی ادھر لوگ موجود ہیں وہ آپ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ آپ کی برکات ہیں، اور جو آپ نے محنت کی پچھلے 25 سالوں سے. تو اگر کوئی کہے کہ میں ادھر سے ایک کو مائنس کر دوں یا دوسرے کو مائنس کر کے ڈائریکٹ چھلانگے لگا کے کوئی مناظر بن جاؤں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور یہ اس طریقے سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو واقعی مفتی صاحب حقیقی بات بتا رہا ہوں کہ میں عبداللہ آتم کے حوالے سے میں نے کچھ کہا کہ تھوڑی سی تیاری کروں. مرزا قادیانی نے کیا بونگی باری اور کس طریقے سے یہ پیش گوئی اس کی جھوٹی ثابت ہوئی، تو اس کے اندر آپ کی پرانی ویڈیوز آج سے 3 سال پہلے غالباً آپ نے ریکارڈ کرائی، تو اس کے اندر سے حوالہ جات جو مجھے ملے، میرا کام اس میں آسان ہو گیا. ادھر سے میرے حوالہ جات ملے، وہ میں نے ادھر روحانی خزائن کاپی میں جا کے کھولے، انجام آتم وغیرہ میں، تو وہ میرا کام اتنا آسان ہو گیا کرنے میں. تو یہ آپ کا کیا ہوا کام ہے، جو جس طرح میں ہوں اور آگے اور بھی بہت سے بھائی ہیں. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، جو نقال کی طور پہ اس کو آگے بیان اگر کر دیتے ہیں تو کوئی شاید ہمیں کریڈٹ دے دے، لیکن اس میں کریڈٹ بالکل بھی ہمارا نہیں ہے. یہ آپ کی محنت اور کاوش جو آپ نے کی پچھلے 25 سالوں سے بھی، تو یہ اس کی برکات ہیں، اور ہم یعنی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور اب آگے بھی اسی طریقے سے ہماری رہنمائی عطا کرتے رہیں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. بیرسٹر صاحب اس پپو سے آپ ہی بات کریں، اور میری زبان تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، میں مائک میوٹ کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا ویسے بھی میں مصروف ہوں، تو بات کریں آپ، تو پھر میں سن رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے مفتی صاحب. پپو صاحب بیک گراؤنڈ پہ چلے گئے ہیں، تو اب مرزا جونیئر کا ریکارڈنگ لاسی نے ریکارڈنگ ہو. چلے اگر پپو صاحب اگر آئیں تو میں ایک ہی بات کروں گا ان سے کہ کیا وہ کاشف بھائی سے یہ میں نے نوٹ بک سے چرا رہا ہوں. کاشف صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا آپ مرزا جونیئر انجینئر جیلمی جہنمی کے اوپر لعنت ڈال کر اسلام کے اندر آنا چاہیں گے، اور ہماری طرح ہمارا ایک بھائی بن کے ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیں گے یا نہیں؟ اور اس سوال کا جب جواب مل جائے گا تو پھر اس کے بعد ہی کوئی آگے بات ہوگی. چلیں پپو صاحب بیک سٹیج پہ، کوئی اور بھائی بات کرنا چاہے تو پلیز ضرور گفتگو کریں. جامعہ ختم نبوت میں 4 سالہ درس نظامی کورس جاری ہے، جس میں تقابل ادیان و مذاہب کا بھی چیپٹر رکھا گیا ہے. خاص طور پر اس پر توجہ بھی دی جائے گی جس میں تقابل ادیان اور مذاہب جو ہے وہ دوسرے دین اور مذاہب جو ہیں ان کے مقابل جو چیزیں کامن ہوں گی دونوں میں وہ بھی دیکھی جائیں گی، اور جس پہ اختلاف ہوگا وہ بھی دیکھی جائیں گی. جامعہ ختم نبوت برائے طلباء و طالبات ہے، اور
गुजरांवाला में उसकी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तालबात जो लेडीज़ हैं उनके लिए क्लास का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर और 12 बजे है, जबकि जो मेल तालिब इल्म मेल स्टूडेंट्स हैं वो बाद नमाज इशा उनकी क्लास जो है वो ली जाएगी और इसमें दाखिला जारी है। नवाब चौक मेन मद्दू खेल रोड मोहल्ला शबीर टाउन। अच्छा ये गली होती है, यहाँ पर ये गला लिखा हुआ, ये शायद कोई गली से बड़ी चीज़ हो। गला बिल्ला शटरिंग वाला गुजरांवाला नवाब चौक है, बड़ा मशहूर सुना है कि चौक है। मैं वैसे गया हूँ 1-2 दफ़ा गुजरांवाला, लेकिन मुझे इसका मालूम नहीं है। सुनने में आया कि बहुत मशहूर चौक है नवाब चौक मेन मधु खेल रोड मोहल्ला शबीर टाउन गला बिल्ला शटरिंग वाला गुजरांवाला। माजरत के साथ उस्ताद मोहतरम का मोबाइल नंबर 0310-719-2233 और 0324-744-8814। इन पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉल ना कीजिएगा, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कीजिएगा। उस्ताद मोहतरम बारी बारी फिर सारे मैसेजेस जो हैं वो देख लेते हैं। दाखिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फिज़िकली इस तरफ में जाना है जामिया ख़त्म नबूवत में। ऑनलाइन ये फ़िलहाल क्लास नहीं है, वैसे तजवीज़ देंगे हम उस्ताद मोहतरम को बाद में कि वहाँ पर जब क्लास शुरू हो तो साथ ही ऑनलाइन भी शुरू कर ली जाए, ताकि वो घर बैठे लोगों के लिए भी आसानी हो। और आप लोगों से गुजारिश है कि जामिया ख़त्म नबूवत की जो असल बिल्डिंग है उसकी ख़रीदारी के लिए, ज़मीन की ख़रीदारी के लिए अभी रकम दरकार है। अपनी दुआओं में ज़रूर अल्लाह ताला से मदद मांगे कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल मदद फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल आप लोगों का ताउन जारी रहेगा, साथ रहेगा, तो वो जगह भी ख़रीद ली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ये तामीर भी उसकी जल्द शुरू हो जाएगी। 2 करोड़ कीमत है उस जगह की, 2 करोड़ उस जगह की कीमत है। कोई एक अल्लाह का नेक बंदा भी दे सकता है और हम 200 साथी मिलकर 1-1 लाख का अगर 1-1 यूनिट लें तो तब भी जो है वो ये काम हो सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है ये, और उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। आप इधर मौजूद हैं, अपना क्या नाम है इसका, पप्पू मौरी, और पप्पू मौरी अपना असल नाम सुनते ही स्प्रिंट मार गए। पप्पू मलक अपना असल नाम सुनते ही दुड़की लगा गए। अच्छा जनाब, ये अभी वाली कौम जो है ना, ये इसको जरा इनवाइट करते हैं। नदीम खान ऑफिशियल वेलकम, और नोमी भी जो है वो पीछे चला गया, नुमान। चलें जी, जब तक हम लाइव करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी, लाइक पे लाइक ठोको जी।
उस्ताद मतलब मेरी आवाज आ रही है? तो अभी फिलहाल तो कोई कादियानी मुरब्बी मौजूद नहीं है और कोई बात करने के लिए भी मौजूद नहीं है बंदा। काशिफ साहब, आपकी अगर इजाज़त हो तो फिर मैं मुख्तसरन मिर्ज़ा कादियानी की एक बड़ी अहम पेश गोई थी उसकी उम्र के हवाले से, तब तक मुफ्ती साहब भी आ जाएंगे, अगर मैं बयां कर दूं। सर्विस के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? आप जरूर शुरू करें। जज़ाकल्लाह काशिफ चौधरी साहब। सबसे पहले हमें मालूम है कि, और मुफ्ती साहब आए तो बेशक मुझे प्लीज़ टोक दें, कि वो कहता था कि जी मेरे जो खुदा है उसने उसको उसकी जो उम्र है उसकी कसम खाई है, उसकी सेहत की उसने उसे वादा किया कि जी तुझे मैं बड़ी लंबी उम्र दूंगा। और मिर्ज़ा कादियानी सारी ज़िंदगी ये पेशन गोइयाँ करता रहा कि जी मेरी बड़ी लंबी उम्र होगी। इस ज़मन के अंदर कुछ हालात जो हैं वो कुछ ख़राब हो गए मिर्ज़ा कादियानी के, क्योंकि पेश गोइयाँ तो उसने बड़ी की और बहुत सारी पेश गोइयाँ डिस्कस भी होती हैं, लेकिन ये एक बड़ी अहम पेश गोई है मिर्ज़ा कादियानी की, जिसमें उसने कहा कि मेरी उम्र जो है वो कम व बेश 80 साल होगी, और अगर 80 साल ना हुई तो फिर मैं झूठा, अगर 80 साल हो गई तो फिर मैं सच्चा। तो देख लेते हैं कि क्या ये पेश गोई मिर्ज़ा कादियानी की सच्ची साबित हुई या नहीं। इस ज़मन के अंदर मिर्ज़ा कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर, और एक बात इससे पहले मुख्तसर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पेश गोई होती है वो इंसान एक दफ़ा करे तो फिर भी बात समझ आती है। मिर्ज़ा कादियानी ने मुतअद्दिद दफ़ा ये पेश गोई की कि मेरी उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले वो पेश गोई करता है सिराजुल मुनीर के अंदर कि 36वीं पेश गोई ये है कि जैसा कि मैं अज़ाला उहाम में लिख चुका हूँ, खुदा ताला ने मुझे खबर दी कि तेरी उम्र 80 बरस या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा होगी। सिराजुल मुनीर रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा 81। मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है मेरी उम्र जो है वो 80 साल, कुछ कम कुछ ज़्यादा। चलें ठीक है। उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी कहता है मुझे मैं तुझे 80 या चंद साल ज़्यादा या इससे कुछ कम उम्र दूंगा। फिर मिर्ज़ा कादियानी तरियाकुल कुलूब के अंदर यही बात दोहरा रहा है। इसके बाद फिर कहता है वो हकीकतुल वही के अंदर 80 या इस पर 5-4 ज़्यादा या 5-4 कम। फिर मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि 30 साल से ज़्यादा अरसा गुजरता है कि मुझे अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया तेरी उम्र 80 बरस या 2-4 ऊपर या 2-4 नीचे होगी। और चले अपनी तो पहले मिर्ज़ा कादियानी पेशन गोइयाँ कर रहा था कि जी मेरी उम्र जो है वो 80 साल होगी। अब उसने खुदा का भी हवाला दे दिया साथ कि मुझे खुदा ने वही की, खुदा ने इल्हाम किया कि तेरी उम्र जो 80-85 बरस की होगी। तो अगर इसकी उम्र 80 साल की ना हुई, कुछ कम या कुछ ज़्यादा, तो फिर जो है इसको मुंह की खानी पड़ेगी। जी मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चला गया पप्पू? मुफ्ती साहब तो गुफ्तगू फिर क्या चल रही थी? मैंने आपकी गैर मौजूदगी मैंने कहा मुख्तसर मिर्ज़ा कादियानी की फिर एक पेश गोई जो उसने कहा कि मेरी उम्र 80 बरस के कुछ ज़्यादा हो, तो मैंने कहा वो उतनी देर मैं फिर दोहरा दूं। ठीक है। अल्लाह अकबर। अच्छा यहाँ पे एक बात करके फिर मैं बुराड़ खत्म करूंगा। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि जनाब वो बहुत कुछ कहता है। अमूमी तौर पे लोगों के अंदर ये चीज मशहूर है जी मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया था, जबकि ये बात नहीं है। उसने सिर्फ नबूवत का ही दावा नहीं किया था, उसने बड़े दावे किए थे। वो खुदा बनता है, वो कहता है मैं खुदा हूं, मैं अल्लाह हूं। वो खुदा का बेटा बनता है, वो खुदा की बीवी बनता है। जब वो कहता है मैं अल्लाह बन गया हूं, वो कहता है कायनात को मैंने तख्लीक की है, इस पूरी कायनात को मैंने तख्लीक की है। समझ आई कि नहीं?
इसके ऊपर मैंने YouTube के ऊपर मुफस्सल लेक्चर दिए हैं, वो आप मेरे चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आप देख सकते हैं। ये अभी पिछले दिनों ही मिर्ज़ा कादियानी के तौहीद के मुतल्लक 10 कुफरियात नाम की वीडियो मेरी 11 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट की तकरीबन, तो उसको आप मुलाहजा करें, आपको पता चल जाएगा। वो सारे दलाइल मैंने दिए हैं। फिर मिर्ज़ा कादियानी के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कादियानी कहते हैं, जो उसने नबूवत का जो दावा किया था वो जिल्ली बरोजी नबी होने का दावा किया था। जिल्ली बरोजी ये क्या होता है जी? जिल्ली बरोजी जब इस पर गुफ्तगू चलती है तो कादियानी कभी इधर की छोड़ेंगे, कभी उधर की छोड़ेंगे, ये इनका तरीका वारदात होता है। फिर हमने साबित किया कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो नबूवत का दावा किया था वो शरीयत वाला नबी होने का दावा किया। वो कहता है मैं साहब शरीयत नबी, ये भी उसका एक दावा है। उसके दीगर तमाम दावा जात में से एक दावा उसका ये है कि मैं साहब शरीयत नबी हूं, मैं एक नई शरीयत लेके आया हूं। ठीक है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो आ गई है, नाम है उसका मिर्ज़ा कादियानी का साहब शरीयत नबी होने का दावा। 9 मिनट 37 सेकंड की वीडियो है, आप लाजमी देखिएगा मेरे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों से कि हमारी वीडियोस को आप शेयर किया करें, शेयर किया करें, देख के, पहले देख के उसको शेयर किया करें। और जो हमारी तवील वीडियोस होती हैं, लंबी लंबी वीडियोस, तो कोई दोस्त अगर उसकी क्लिपिंग कर सकता है, छोटे छोटे क्लिप, मिसाल एक सवाल उसका जवाब, तो उसके ऊपर मुश्तमल क्लिप भी आप बना के वायरल कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बसा औकात ऐसे होता है कि अभी इसकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग को हम YouTube के ऊपर अपलोड हूबहू ऐसे ही कर देते हैं। एडिटिंग तक का वक्त नहीं मिलता, हमारे पास नहीं इतना वक्त होता कि उसको एडिट करें, उसकी क्लिपिंग करें, ये सारे मामला तो बड़ा इसके लिए वक्त दरकार होता है। तो बहरहाल जी अभी एक छोटी सी गुफ्तगू करके फिर मैं आप हजरात से इजाजत चाहूंगा। मिर्ज़ा कादियानी का जो दावा है कि मैं साहब शरीयत नबी हूं, उसके ऊपर मैं आपको ये एक हवाला देने लगा हूं, नोट करिएगा। शैतानी खज़ाइन, जिसका नाम इन लोगों ने रखा हुआ है रूहानी खज़ाइन, उसकी जिल्द 17 है, सफ़ा 435 और 436। हवाला नोट कर लें भाई, सफ़ा 435 और 436। पप्पू फिर आ गए, अब क्या बकवास करनी है तुमने, करो, पहले तुम्हारी सुन लेते हैं, फिर मैं आप गुफ्तगू करता हूँ। अर्ज ये करनी थी, जैसे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मकसद में, नेकी के मकसद में कामयाब करे। बस ज़ाहिर है हर बंदे का अपना तरीका होता है। और ये मुफ्ती साहब मेरे पास एक आइडिया था, जिसका मशरा 2 या 4 यार मैनू आपका हवाला दे लेंदे, तेरी खुद नहीं मुकदी, मैनू हवाला देन दे, तू चंगा में यार, तू नमूना जिहा विच आके अपनी एक उथल दे देना है। तू बंदे दा पुत्र क्यों नहीं बनता पिया, तेनू लितरां दी लोड़ है यार। साहब आपने मुझे इजाजत दी है कि मैं बोलूं। अच्छा मैं नहीं बोलता, और मैं क्या, कोई पता नहीं ये मतलब कोई सवाल करेगा, वो अपनी विच कच कुछ लैके आ जाना है। अच्छा जी, ये हवाला दोबारा नोट करें, रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 435 और 436। हवाला नोट कर लिया आप लोगों ने? ये नीचे कोई बंदा हवाला लिख दे यार। जिल्द 17 है, सफ़ा 435 436। जिल्द 17 सफ़ा 435 436। जिल्द 17 सफ़ा 435 और 436। मिर्ज़ा कादियानी जो यहाँ पे लिखता है उसका मैं खुलासा बयान कर देता हूँ, उसके बाद इबारत सुना दूंगा आपको। यह हवाला भी किसी दोस्त ने लिख दिया है, नोट कर लें।
मिर्जा कादियानी कहता है देखो जी, साहब शरीयत नबी उसको कहते हैं कि जिस नबी के ऊपर वही नाजल हो और वही के अंदर अमर हो और नहीं हो, उसको साहब शरीयत नबी कहते हैं। अमर कहते हैं हुक्म देना, नहीं कहते रोकना, क्योंकि कुरान पाक के अंदर भी अवामिर और नवाही हैं, अमर और नहीं उसके अंदर भी हैं। वो कहता है मिर्जा कादियानी अब ये कहता है उसको साहब शरीयत नबी कहते हैं। अब वो अपनी मिसाल देता है कि मेरे ऊपर जो वही नाजल होती है, मेरे ऊपर भी वही नाजल होती है। पहले तो मैं नबी हूं और नबी भी ऐसा हूं कि मेरे ऊपर वही नाजल होती है, और मेरे ऊपर जो वही नाजल होती है उसके अंदर अमर भी होता है और नहीं भी होता है। तो नतीजा क्या निकला? पप्पू से मैं पूछता हूं, नतीजा क्या निकला पप्पू? कि मिर्जा क्या कहना चाह रहा है कि मेरी वही के अंदर अमर भी होता है और नहीं भी होता है। हूं बोलना, हूं नहीं बोलना इन्हें, वे लो हूं नहीं बोलेगा, क्या कर तू? मैं समझा म्यूट था, अनम्यूट था, और झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती साहब कज़ाब और दजाल। नहीं मैं नहीं पूछा तूने झूठ बोलिया कि नहीं, दज्जाल से कज़ाया नहीं पूछा, मैं कह नतीजा की निकले तो यही निकला मुफ्ती साहब झूठ है, और क्या नतीजा? तो क्या तूने बात सुनी नहीं असल में, जेडी सुनने वाली वो सुनी नहीं, तो इन्हें तेन पता ही कोई नहीं गल की चल की रही है, तेन पता ही कोई नहीं। झूठ है दज्जाल है कज़ाब है, ड्रामेबाजी। कल तुम ही मुजाहिद खत्मे नबूवत बन जाना इंज दे, मैं भी मुजाहिद खत्मे नबूवत। मैं कल नहीं, मैं आज ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं बने हैं। हाँ बनया वा हो इंज दे ही हुंदे ने, नजर हुंदा है फिर मैनू। अच्छा जी, अब हवाला सुनिए जी। मिर्जा कादियानी कहता है मां सिवा इसके ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज है, जिसने अपनी वही के जरिए से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहिब शरीयत हो गया। उसको साहिब शरीयत नबी कहते हैं, जिसकी वही के अंदर अमर और नहीं हो। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्जम है, क्योंकि मेरी वही में अमर भी हैं और नहीं भी। तो कहता है मेरे ऊपर जो वही नाजल होती है उसके अंदर अमर भी होता है और नहीं भी होती है। फिर वो अब आगे एक मिसाल देता है अपने एक वही की, मसलन ये वाला इल्हाम कुल लिल मुमिनीना, ये अरबी के अंदर इबारत लिख के अगले सफे के ऊपर वो कहता है ये बराहीन अहमदिया में दर्ज है और इसमें अमर भी है और नहीं भी, और इस पर 23 वर्ष की मुद्दत भी गुजर गई है, और ऐसा ही अब तक मेरी वही में अमर भी होते हैं और नहीं भी। सुन लिया आप लोगों ने, नतीजा क्या निकला? हाँ पप्पू बता, नतीजा क्या निकला? जब मुफ्ती साहब यही निकला कि अमर भी होती है और नहीं भी मेरी वही होती है, यानी कि मैं नबी हूँ, शरीयत वाला नबी हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला। हाँ वो कहता है मैं साहब शरीयत नबी हूँ, मैं एक नई शरीयत लेके आया हूँ, ये बात वो कह रहे। तो साहब मेरा जवाब सही हो गया, नहीं तो तुसी मैनू जिहड़ा ना नहीं ए अज तेनू मैं गल समझाई है, तेनू गल समझ आ गई है कि नहीं कि मिर्जा कादियानी कहंदा पे मैं साहब शरीयत नबी हूँ? बिल्कुल दावा साबित हो गया, दावा कर छड़े। हाँ अच्छा ए गल तेनू कित्थों समझ आई है? साहब मैं फैज 1-1 ने भी कई दफा वाले पेश किते ने, तुसी भी वाले पेश किते ने माशाल्लाह। नहीं ए गल तेनू ते कित्थों समझ आई है कि मिर्जा कादियानी साहब शरीयत नबी है? मुफ्ती साहब तुसी आज समझाइए मैनू। तेनू मैं समझाइए एंज ही है ना? जी मुफ्ती साहब बिल्कुल एंज ही है। सारे नोट कर लो भाई, नोट कर लो। पप्पू नू यह गल मेरे को समझ आई है, मैं समझाई है। मुफ्ती साहब ते ये जकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बैरिस्टर साहब। मुबारक मुफ्ती साहब आपको। अब इसको ये बात मुझसे समझ आई, अब ये दीगर ब्राडों के ऊपर बैठ के ये हवाला पेश करे, इस मौजू पर बात करे, तो ये समझिएगा कि ये मुबशर शाह इसका उस्ताद है, मुबशर शाह से इसने सुन के समझ के ये बात यहां पर कर रहे हैं।
सारे नोट करिएगा, ये बात आज आप लोगों ने नोट करनी है। और मुझे मैं 110% कह सकता हूं कि कल जब इसने ये हवाला पेश करना है ना कहीं पर भी, इसने हमें बीच में से निकाल देना है। यही करते हैं ये लोग ड्रामेबाजियां। वो जिसका नाम ले रहा है वो राफती जो है वो हसन काजमी, हवाले साडे कोल सुने ने, हां जी, ते ओ ही बह के तकसीम करी जा रहे ने। वो एक सीकर नाम दा मुलहिद है, ओ इन्हां दी टीम ही है, पप्पू मलक दी टीम है, ते ड्रामेबाजियां लाइयां ने। हां जी, नप के रखो पुत्र, नप के रखो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੋਕਣਾ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹੀ ਏ, ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਏ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਗੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦਵੋ ਹਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਦਵੋ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਫਸੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਇਤ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ। वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरूइन, सूरा अल बकरा आयत 228 का तर्जुमा और तफसीर बयान करते हुए वो कहता है कि जो जिनको तलाक हो गई है ना उनकी इद्दत जो है वो 3 हैज है। ये बात उसने की है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये खालस मसला जो है ना ये फिका का मसला है, फिका हनफी का। जबकि इमाम शाफी जो है ना वो कहते हैं कि जो मुतलका है उसकी जो इद्दत है ना वो है 3 तोहर। इमाम आजम फरमाते हैं कि नहीं 3 हैज है। मिर्जा जूनियर जेलमी भी कहते 3 हैज हैं, लेकिन वो बाबा इमाम आजम अबू हनीफा को बीच में से निकाल गए। बता जरा, नहीं तो अभी उसकी वीडियो जाके देख लो, सूरा अल बकरा आयत 228 की जो तर्जुमा तफसीर उस क्लास वो लेता है, उसके अंदर उसने मसला ये बयान किया। सब क्या पता उसने खुद कोई निकाल लिया हो कुरान कहाँ से, ये तो निकला ही इमाम आजम अबू हनीफा से निकला है ये मसला। कुरान हदीस से कहीं ना कहीं से, कुरान हदीस में कहीं नहीं है, कोई है तो बता दो। अबू हनीफा कहाँ से लेके आए, ऊपर से लेके आए? नहीं वो निकाले ना। हम लोग तो कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, इजमा को भी मानते हैं, कियास को भी मानते हैं। इमाम आजम जो मसाइल अखज़ करते थे इन 4 तुरुक से, ये अदिल्ला अरबा से वो मसला अखज़ करते थे। जी जी मुफ्ती साहब इस टाइम मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, नहीं तो मैं नहीं कांटेक्ट नहीं है तो आप अभी बैठो, मैं जरा उसकी वो चैनल देखता हूँ, उसकी चैनल के ऊपर मैं अभी वीडियो देखता हूँ, अगर मुझे अभी मिल गई तो अभी मैं चलाता हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ, ये गो और ये मैदान वो केड़ा मसला है, मैनू अल्लाह करे वो वीडियो दी मिल जाए कंप्लीट लेक्चर के अंदर
बैरिस्टर साहब आप उतनी देर गुफ्तगू करें, मैं उसकी मुफ्ती जरा साहब ने वीडियो, बोला मुझे कि लाहौर से उसकी कराची वीडियो जरा कैसे लेके जाना है? आऊं, ये वीडियो जरा लेके आऊं। मुफ्ती साहब मैं उसको कहूँ ट्रेन में बैठो और तू बंदे दा कराची चले बच्चा जाओ। बन आप ही बैरिस्टर को- साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ बैरिस्टर ਗਈ साहब, ਨਹੀਂ। बिस्मिल्लाह। जी ਕਰੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਲ ਬਕਰਾ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ। जी जी, ये इंजीनियर साहब, पप्पू साहब माइक म्यूट कर लें। जो इंजीनियर साहब हैं वो तो सबको मालूम है कि किस तरीके से किसके नक्शे पे तो चल रहे हैं, और हाल ही के अंदर उनकी जो है उन्होंने पंगे जो है वो ज्यादा लेना शुरू कर दिए। रमजान में वैसे मुमूमी तौर पे सुना है कि शैतान जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन इस दफा ये ले जी, ये वीडियो आ गई है। ये लेक्चर नंबर कितना है इसका, एक मिनट सुन लें। 033 कुरान, 033 कुरान क्लास, आयत नंबर 223 से लेके 229 तक, ठीक है ना। 223 से 229, तो ये आयत इसी के अंदर होगी 228। अब मैं जरा वो आयत जरा देख लूं कहाँ पे है। थोड़ा सा मुझे टाइम देना है आप लोगों ने। ये कोई भाई नीचे कमेंट्स भी देखे, नीचे लोग गालियां दे रहे हैं, तो ये सुनने वाला क्या कहेगा कि मुफ्ती साहब के शागिर्द गालियां देते हैं? ये नाम मुफ्ती साहब का गंदा कार्य हो आप लोग गाली बाजो। ये आ गया भाई, जरा सुनिए आज। को नए निकाह से रोक के रखेगी जिसको तलाक दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि तलाक देने के बाद 3 हैज यानी ऑलमोस्ट 90 डेज 3 हैज, देखा बैरिस्टर साहब सुन लिया, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। 3 हैज, ये मसला है ही फिका का। कुरान दी इसके अंदर कहीं पे है तो ले आओ, चलो ये गौर ये मैदान जाओ, ये चैलेंज है तुम्हें। ये है ही फिका है, हनफी का मसला है ये। अब वो बाबे का नाम उसने नहीं लिया और वो जनाब अपने नंबर टंग रहे। बताओ, चलो पप्पू, ये मैं मिनट भी बता दूं, टाइमिंग बता दूं। ये 38 मिनट 31 सेकंड, 38 मिनट 31 सेकंड के ऊपर ये बात मौजूद है। ये कैमरे के अंदर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। यार एक मिनट, ये देख रहे हैं, और ये टाइमिंग भी नोट कर लें। ये देख लें, ये इसका ये देख लें, ये सारा। ये ना कहना कि अपनी तरफ से मैंने कोई गप मारी है। जी बैरिस्टर साहब, अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? दुरुस्त बात आपने फरमाई मुफ्ती। इंजीनियर साहब जो कंटेंट है चोरी करते हैं। आपको मालूम होगा इनका जो रिसर्च पेपर है वो इनके एक उस्ताद थे और जुबैर अली ज़ई, तो अच्छा, जो कंटेंट चोरी करता है, माजरत के साथ एक इल्मी गुफ्तगू यहाँ पे कर दूं, उसको कहते हैं मुदल्लिस, तदलीस करना, यानी असल फर्द को बीच में से गायब कर देना। ठीक है, फर्ज कर ले कि एक बंदे ने एक गुफ्तगू अपने बाप से सुनी, उसके बाप ने अपने बाप से सुनी, तो वो ये कहे, जब बयान करे तो वो ये कहे कि मेरे दादा ने मुझे ये बात बताई है। बीच में अपने अब्बा को बीच में से गायब कर दे, एक वास्ते को बीच में से खत्म ही कर दे। ऐसे को मुदल्लिस कहती हैं, और मुदल्लिस की हदीस को ज़ईफ कहती है, उस रावी को ज़ईफ कहती हैं कि ये तदलीस करने वाला है। तो मिर्जा जूनियर जेल में तो रावी ही ज़ईफ है, और हमने आपको अभी साबित कर दी है। जी बैरिस्टर साहब, दुरुस्त बात पर जो एकेडमिक
किसी का कोई करे और कोई काम करता हो, कोई तहकीकी, तो उसमें प्लेजरिज्म इसको आप कहेंगे कि प्लेजरिज्म ये करते हैं बगैर किसी का हवाला दिए हुए डायरेक्ट अपने नाम से मंसूब करके इंजीनियर साहब प्लेजरिज्म करके काम करते हैं। तो वो अंधाधुन पैरवी का अंजाम उसके अंदर हदीसें मुबारक इन्होंने लिखी हैं, तो वो उन्होंने ज़ुबैर अली ज़ई की उधर से चुरा कर A to Z वो जो तर्जुमे उन्होंने किए वही उठा के अपनी अंधाधुन पैरवी के अंजाम में लगाए हैं, लेकिन ज़ुबैर अली ज़ई को कोई क्रेडिट नहीं। तो उससे हम इत्तफाक नहीं करते, लेकिन चलो जिसे तुमने चोरी किया है कम से कम उसको तो तुम क्रेडिट दो, लेकिन इंजीनियर साहब ने अपने जो उस्ताद है उसको क्रेडिट नहीं देते। लेकिन ये एक बात है कि इंजीनियर का जो भी उस्ताद बना है, जिसको भी इसने कहा है कि तुम मेरे उस्ताद हो, तो मिर्ज़ा इंजीनियर जूनियर जेहलवी ने फिर उसका जो नाड़ा है वो भी ज़रूर थोड़ा सा ढीला किया है। इसने कहा कि जी डॉक्टर इसरार मेरे उस्ताद हैं, तो फिर इसने डॉक्टर इसरार की वो उनके हवाले ये जो से बाबों के खिलाफ बोलता है और बाबों की करामात के ऊपर जो बात करता है ना, ये सारी बातें अल बरेलविया के अंदर इहसान लाई ज़हीर ने की हुई हैं, पहले की हुई हैं। अब इहसान लाई ज़हीर को इसने बीच में से निकाल के ये सारी बातें अपनी तरह मंसूब करके तो ये अपने नंबर टंगता है, अगरचे वो गलत बातें हैं, लेकिन ये बंदा मुदल्लिस आदमी है, तदलीस करता है ये। जी हाँ पप्पू, इसके ऊपर बता ना कुछ, हूं बोलती तेरी क्यों बंद हो गई है? मुफ्ती साहब मैं सुन रहा हूँ, लेकिन हाँ क्या सुन रहे हो, बता तो सही। मिर्जा जूनियर जेल में असल बाबे को बीच में खा क्यों जाता है? असल बाबे का नाम क्यों नहीं बताता? ये तो मुदल्लिस है और ये ज़ईफ रावी है, ज़ईफ रावी की हदीस नहीं ले सकते आप। जी साहब पहली बात है ना, मैंने वो पूरी वीडियो देखी है ना, मेरे से कोई दोस्ती आ रही है, मैं कौन सी? मैंने तो सिर्फ ये बताना था कि उसने सलासा तक करो इनसे मुराद 3 हैज मुराद ली है, बस इतनी बात वो मैंने सुना दी है। इसमें पूरी वीडियो की क्या बात है? अबू हनीफा ने कौन सी डिक्शनरी से ये 3 हैज निकाले थे जो इंजीनियर? नहीं चलो अबू हनीफा को छोड़ो, इसने कहां से निकाले? मैं तो मिर्जा जूनियर जेल में का सवाल कर लूं, इसने कहां से निकाले 3 हैज? जिसे अबू हनीफा ने निकाले थे, इसी ने निकाली होंगे। ये देखा ना ड्रामेबाजियां ना, ये तुम मर्दियों की लख दी लानत है भाई। मुफ्ती साहब आपने कराची जाना है, मुझसे पूछे मैं को भाई इधर देखो, इमाम आजम अबू हनीफा ने जहां से भी निकाले छोड़ दे, मिर्जा जूनियर जेल में ने ये जो 3 हैज मुराद लिए कहां से लिए, मेरा ये सवाल है। तो फिर उससे फोन करें, पूछें, आप उलमा को भेजें। मैंने तो उसको फोन किया, वो आगे अपनी वो रज्जो जो है ना उसको पकड़ा देता है, वो कहता है रज्जो बात करे। अब क्या बंदा करे बताए ना, रज्जो बात करती है, वो खुद करता नहीं है। बताओ इसका भी कोई हल बताओ आज। और मिर्जा जूनियर जेल में तो कहता है मेरे स्टूडेंट जो हैं वो तो इन मौलवियों के ऊपर भारी हैं, यूं कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो दो ना जवाब, क्यों नहीं दे रहे? साहब अभी आप तुम कैसे मरज़ई हो? अभी आपने 2 रफ्तियों को बोला है, का कहा है सीकर का, और चले तू अपना जवाब दे कि मिर्जा जूनियर ने तो तेरे बारे कहा था मेरा स्टूडेंट तो यूं कर देते हैं, वो कर देते हैं, और ये है वो है, वो सारे सबसे बड़े इमाम आजम ही ये हैं। तो आंधी जन दिखे नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ, ना ही उस्ताद ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ना ही शागिर्दां ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ है, बक बक ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। हाँ दो जवाब हो ना। जवाब यही है जिधर से अबू हनीफा रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने निकाला था, वहीं से हाँ वो कहाँ से निकाला है मिर्जा जूनियर ने, बताओ ना कहाँ से? मैंने कहाँ से निकाला है, कोई जगह बताओ। कभी मुलाकात होगी तो पूछ लूंगा, जिधर से हमारी मुलाकात नहीं होती। जिधर से अबू हनीफा ने निकाल लिया था। कहाँ से निकाला है इमाम आजम अबू हनीफा ने? आप अबू हनीफा से वो हमने बताना है। अजी जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग तो मानते ही नहीं किसी बाबे को ना भाई। वो क्या इसने इमाम आजम अबू हनीफा से ये बात ली है? मैं तो आपको भी मानता हूँ मुफ्ती साहब। भाई बता तो सही, मिर्जा जूनियर ने क्या ये इमाम आजम अबू हनीफा से ये बात ली है? नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे क्या पता, कि मुझे उसने बताया थोड़ी। तू कह रहा है कि जहाँ से इमाम आजम अबू हनीफा ने ली है वहां से उसने ली है, तू कह रहा है, अभी कह रहा है। नहीं इमाम अबू हनीफा से नहीं ली, कहीं से और ली, खुद उस कहाँ से ली है इसने ये बात? कहाँ से इसको पता चली कि इससे मुराद 3 हैज हैं?
उसने सब सारे फिरकों को वक्त डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो लिया। ओ भाई बताएंगे भी तो बता भी तो चले ना, ये गौर ये मैदान तू हमें झूठा कर, दलील दे के झूठा कर दे, दलील से बात कर तू। हाँ बता ये कहां से ली उसने, दलील दे के तू मुफ्ती को ऐसे जनाब निचोड़ के फेंक दे हैं, और जाके फिर दूसरी ब्लडों पे कहना वो मुफ्ती मुबशर मैं तो होके आ गया भाई। तेरे ते नंबर टंगे जाने ने यार, जल्दी जल्दी बता दे। मरज़ियत भी जलील होने तो बच जाएगी, और मिर्जा जूनियर जेलमी भी जलील होने तो बच जाएगा। आज पुत्र अगर तू जवाब ना देता ते मरज़ियत सारी दी सारी नंगी हो जानी है। हाँ चल पप्पू दस। सलासदा करो इनका तर्जुमा 3 है, जिसने कहां से लिया है? माइक ओपन कर, क्यों बोलती बंद हो गई है तेरी? यार कौन है बैरिस्टर साहब, आप इससे जवाब लेंगे? फजूल आप बैरिस्टर time waste साहब। कर रहे हैं, अपना टाइम भी मेरा टाइम भी वेस्ट। बैरिस्टर साहब इससे जवाब लेके जरा आज मैं देखता हूं आप जवाब लेती हैं कि नहीं। लें इससे जवाब। जी पप्पू साहब बताएं फिर किधर से लिए? 2 3 4 5। जी सर मुफ्ती साहब इंजीनियर साहब के जो आपको मालूम है स्टूडेंट जैसे मिर्ज़ा कादियानी ने भी कहा था कि जो मेरे जो इसके जली उम्मती हैं तो भी दलीलों का और दलाइल का लगा के मुखालफिन के मुंह बंद कर देंगे। ये अब हमारे तो किए नहीं, लेकिन खुद अब नहीं कुछ सफाई बयां करना चाहते। एक आसान सा जवाब है ये जो कहा जा सकता है कि भाई हमें नहीं मालूम। बैरिस्टर साहब आप ना मेरे आगे आओ, आपकी नंगा आपको ना मैं कर दूं, मुफ्ती साहब को रहने दो प्लीज, आपकी मेहरबानी है। हेलो जी, हेलो सुन लिया जी बैरिस्टर साहब, इनू कहते जे मरज़ियत है जे मिलते थे स्टूडेंट देखिया जे लग गया जे पता हो रहा है। मेरी गल ते यकीन नहीं सी हुंदा पिया बैरिस्टर साहब, तुहानू हुण लगा जे पता? बिल्कुल मालूम ये तरबियत जेलम की तरबियत असरअंदाज होती है ना। तो कोई गालम गलोच मुफ्ती साहब की, और ये समझ लें इंजीनियर साहब की तरबियत के जो गालम गलोच और कपड़े उतारना, शलवार उतारना और नंगा कर देना, ये फिर अब जिसका जैसा बाबा हो फिर उसको वही तालीम देता है। तो इनका बाबा फिर इंजीनियर है तो इंजीनियर ने ये बात सिखाई होगी, वल्लाहु आलम। मैं तो अच्छा ही गुमान रखूंगा, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है। ओए पप्पू ये आज की डेट नोट रखना, आइंदा से जब भी तू आया ना मेरी बराड़ के ऊपर या मेरा तेरा आमना सामना हुआ, कोई सवाल मैंने तुझसे नहीं करना, सिर्फ ये इस सवाल का जवाब टाइम क़यामत तक है। सलासदा करो इनका 3 है, कहां से तर्जुमा इसने लिया, बस तूने मुझे ये बताना है, और कोई तुमसे सवाल ही को नहीं मेरा। बस ये आज जवाब दे दे, कल दे दे, हफ्ते बाद, महीने बाद, 1 साल बाद, या क़यामत के दिन दे देना, टाइम क़यामत तक। वो ये अब तेरी मर्जी है। अच्छा यार बैरिस्टर साहब फिर इजाजत दें, आज के लिए इतनी मंजी काफी है जो ठोक दी है। कादियानियों की भी ठोक गई, मर्दियों की भी ठोक गई, मिर्जा सीनियर की भी ठोक दी, मिर्जा जूनियर जेलमी की भी ठोक दी। आ जाओ भाई मंजियां ठका लो भाई, रज के मंजियां ठकाओ भाई। तो मुझे इजाजत दें, रब रखा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जामिया खत्म नबूवत के दाखिले जा रही हैं गुजरांवाला के दोस्तों से गुजारिश है कि ये पैगाम और दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और ईद से पहले पहले दाखिले अपने करवा लें, ताकि जब क्लास शुरू हो जाए तो फिर आप लोग बीच में शामिल हो जाएं। ये सिर्फ गुजरांवाला के तुलबा और तालबात के लिए है, फिजिकली ये क्लास होगी। चलिए
चलें जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह मुफ्ती, शुक्रिया।